السلام علیکم، بول نیوز ہیڈ کوارٹرز میں آپ کو خوش آمدید کہیں گے۔ میں ہوں آپ کے ساتھ سہرش زہیب، میں ہوں مہوش نثار، میں ہوں ارباب جہانگیر۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی، بلیٹن میں آپ کو دکھائیں گے۔ کپتان کا پیغام کیا؟ مریم کا جلسہ خالی کیوں؟ ٹوٹا فیکٹری کا نیا شاہکار؟ عید پر بھی لوڈ شیڈنگ؟ اور بھاؤ تاؤ عروج پر؟ پاکستان بدترین حالات کا سامنا کر رہا ہے۔ صورتحال سری لنکا جیسی ہو سکتی ہے۔ مکمل تباہی سے بچنے کا واحد راستہ عام انتخابات ہیں۔ عمران خان نے امپورٹڈ حکومت اور پشت پناہوں کو واضح پیغام دے دیا۔ ٹویٹر پر لکھا، بدماشوں کا ٹولہ مہنگائی سے عوام کو کچل رہا ہے۔ شہریوں کو ان لٹیروں سے بچانا ہوگا۔ یہ لوگ صرف کرپشن کے پیسے بچانا چاہتے ہیں، اس لیے فیصلہ عوام کو کرنے دیا جائے۔ کا یہ گورنمنٹ اناؤنس نہیں کرتی جب تک ہم الیکشن ان سے زبردستی نہیں کرواتے، ہم نے سڑکوں پہ ہونا ہے۔ عوام کو کرنے دیں، خان کا مدعا جمہوریت ہے۔ عمران خان نے ایک بار پھر واضح پیغام دے دیا۔ ٹویٹر پر لکھا، امپورٹڈ حکومت اور اس کے پشت پناہوں کے لیے میرا واضح پیغام ہے۔ مکمل تباہی سے بچنے کا واحد راستہ فوری طور پر آزادانہ اور منصفانہ انتخابات ہیں۔ خان نے لکھا، بدماشوں کا ٹولہ عوام کو ناقابل برداشت مہنگائی سے کچل رہا ہے۔ یہ کرپشن کے 1100 ارب بچانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ملک میں سری لنکا جیسے حالات پیدا ہونے اور مکمل سیاسی اور اقتصادی تباہی میں معمولی سا وقت درکار ہے۔ اس سے پہلے کہ یہ ٹولہ ملک کو مزید برباد کر دے، ملک کے اصل ورثاء عوام کو اپنا فیصلہ کرنے کا حق دیا جائے۔ ملک میں فوری طور پر انتخابات کرائے جائیں۔ لاہور میں تحریک انصاف کی ڈور ٹو ڈور مہم جاری ہے۔ پی پی 167 میں بڑی کارنر میٹنگ ہوئی جس میں کارکنوں نے بڑی تعداد میں شرکت کی۔ شفقت محمود نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ضمنی انتخابات میں تحریک انصاف کی کامیابی یقینی ہے۔ بولے، عمران خان خوددار آدمی ہے، اس لیے ان کے خلاف سازش کی گئی۔ پاکستان کا مستقبل عمران خان کے ساتھ جڑا ہے۔ انہوں نے کارکنوں سے کہا کہ اپنے ووٹ کی حفاظت کرنی ہے۔ ضمنی انتخابات کے لیے لاہور میں تحریک انصاف کی مہم اس وقت جاری ہے۔ پی پی 167 میں ایک بڑی کارنر میٹنگ کا انعقاد کیا گیا جس میں کارکنوں نے بڑی تعداد میں شرکت کی۔ پاکستان تحریک انصاف کے رہنما شفقت محمود نے خطاب کیا، کہا کہ ضمنی انتخابات میں تحریک انصاف کی کامیابی کا یقین ہے۔ بولے، عمران خان ایک خوددار آدمی ہے، اس لیے ان کے خلاف سازش کی گئی۔ پاکستان کا مستقبل عمران خان کے ساتھ جڑا ہے۔ انہوں نے کارکنوں سے کہا کہ اپنے ووٹ کی حفاظت کرنی ہے۔ پی پی 167 میں یہ بڑی کارنر میٹنگ ہوئی جس میں پاکستان تحریک انصاف کے کارکنوں نے بڑی تعداد میں شرکت کی۔ شفقت محمود نے یہاں پر خطاب کیا اور کہا کہ ضمنی انتخابات میں تحریک انصاف کی کامیابی یقینی ہے۔ 16 ارب روپیہ عمران خان کا قصور کیا تھا؟ عمران خان کا قصور یہ تھا کہ وہ ایک خوددار آدمی ہے اور وہ چاہتا تھا کہ ہمارا ملک جو ہے وہ خودداری سے اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو۔ یہ تھا عمران خان کا قصور۔ اس لیے عمران خان کے خلاف سازش کی گئی کہ شہباز شریف جو ہے اس کے نوکروں کے اکاؤنٹ سے 16 ارب روپیہ نکلا اور جس شخص کے اکاؤنٹ سے 4 ارب نکلا اس کو اگلے دن مار دیا وہاں پہ دبئی میں۔ اسی طرح جو ان کا انویسٹیگیٹر تھا اس کو بھی مار دیا گیا۔ تو یہ تو وہ لوگ ہیں جنہوں نے اس ملک کو لوٹا ہے، اور یہ وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ کوئی بات نہیں، تھوڑا کھا پی لو، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ایک 16 ارب والا، نیچے 8 ارب والا، دونوں ضمانتوں پہ ہیں، دونوں عدالت میں جا کے کہتے ہیں آئندہ کی پیشی معاف کر دی جائے، اور ایک وزیر اعظم بنا ہوا ہے اور ایک وزیر اعظم۔ امپورٹڈ حکومت کتنی مقبول، لاہور والوں نے بتا دیا۔ مریم نواز نے جلسے کا اعلان کیا لیکن پنڈال بھرنا مشکل ہو گیا۔ لاہور کے جلسے میں شہری تو کیا، نون لیگ کے کارکنان بھی نہیں پہنچے، خالی کرسیاں منہ چڑھاتی رہیں۔ پی پی 158 میں جلسے کے 7 بجے کا وقت لیکن پنڈال نہ بھر سکا، جس کی وجہ سے قیادت بھی سٹیج پر نہ پہنچی، خود مریم نواز بھی نہ آئیں۔ پنڈال خالی ہونے کی وجہ سے مرکزی قیادت نے حلقے کے امیدوار رانا احسن شرافت کو جھاڑ پلا دی۔ جلسہ گاہ کو فوری بھرنے کی تلقین بھی کی گئی۔ ایم کیو ایم کے شکوے اور بلوچستان عوامی پارٹی کے اعتراضات۔ لاہور میں شہباز شریف چودھری شجاعت سے ملاقات کرنے ان کے گھر پہنچ گئے۔ وزیراعظم شہباز شریف نے چودھری شجاعت سے ان کی خیریت دریافت کی۔
उन्होंने मुल्की सियासी सूरत-ए-हाल पर बात भी की। आगे देखिए, ईद के बाद भी लोड शेयरिंग और सहाफत पर एक और हमला। वज़ीर आला पंजाब के इंतखाब में शफाफियत यकीनी बनाई जाएगी। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद करवाना सबकी जिम्मेदारी है। स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज़ इलाही का वीडियो पैगाम, बोले हुक्मरान इदारों को मुखालफिन के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होने देंगे। सियासी जमातें इंतजामी मामलात में मुदाखलत से बाज रहेंगी। हुकूमत ट्रांसफ़र पोस्टिंग से मुताल्लिक फैसले पर अमल दरामद करवाए। कबूल करते हुए इस पर बिल्कुल हर एक को नेक नीति से अमल दरामद कराना जो है, ये सबकी हमारी जिम्मेदारी है। दोनों पीटीआई की और कोलिशन पार्टनर पाकिस्तान मुस्लिम लीग और दूसरी तरफ नून लीग की भी वैसी जिम्मेदारी है, सबकी जिम्मेदारी है कि असम्बली के अंदर बिल्कुल एक बड़ा अच्छा दोस्ताना माहौल में इलेक्शन हो, जिसमें गैर जानबदारी और शफाफियत को यकीनी बनाएंगे इंशाअल्लाह। हमजा शहबाज ने भी इसी तरह सुप्रीम कोर्ट को यकीन दहानी करवाई है और मुझे उम्मीद है इंशाअल्लाह वो भी सुप्रीम कोर्ट के फैसले की रोशनी में ज़िमनी इंतखाबात का अमल गैर जानबदाराना और शफाफ अंदाज में मुकम्मल करवाएंगे। और साथ ही हुकूमत ट्रांसफ़र पोस्टिंग पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर सख्ती से अमल दरामद कराएगी। कहते हैं बुशरा बीबी की जाली ऑडियो मरियम नवाज की टोटा फैक्ट्री की प्रोडक्शन है। इस टोटा फैक्ट्री में जाली मवाद तैयार किया जाता है और फैलाया जाता है। इसी टोटा साज फैक्ट्री के तहत साकिब निसार और अरशद मलिक की वीडियोस लीक होती हैं। उनका कहना था कि नून लीगियों ने तमाम रेड लाइंस क्रॉस की, जमाइमा खान पर इल्ज़ामात लगाए गए, इमरान खान के घर तक को निशाना बनाया गया। शहबाज गिल ने भी बुशरा बीबी की मुबैन ऑडियो को जाली करार दे दिया। कहा, जो लोग अपने घर की ख़वातीन का एहतराम नहीं करते वो किसी और का कैसे करेंगे। आयशा अहद उसकी बेटी के साथ थानों में क्या कुछ होता रहा सबको मालूम है। शहबाज गिल ने कहा कि स्ट्रेटेजिक सेल में जो कुछ हो रहा है हमें सब कुछ मालूम है। बोले, इमरान खान पाकिस्तान के लिए मजबूत और ताकतवर फौज चाहते हैं, लेकिन नून लीग वाले अब जुबान से जूते चमकाने लगे हैं। जो वायरल की है उन्होंने, वो मरियम सफदर की टोटा साज फैक्ट्री है। जिसी टोटा साज फैक्ट्री के तहत कभी साकिब निसार की ऑडियोज आ जाती हैं, कभी जो है वो जज अरशद मलिक को ब्लैकमेल किया जाता है मरहूम को वीडियोस दिखाकर, जाली वीडियोस दिखाकर। इमरान खान की जिंदगी पे हमेशा इन्होंने जाती हमले की। इन्होंने इमरान खान के घर को हमेशा टारगेट किया है। जो बेहूदगी के ऊपर आप उतरे हुए हैं, आप रेड लाइन को क्रॉस कर रहे हैं। रेड लाइन को, बारिश के सीजन में बड़े सारे कीड़े मकोड़े निकलते हैं, तो आपके घर की तो ये रवायत है ऐसे इशारे करके एक दूसरे से, अपने घर की खवातीन से, अपने लोगों से बात करने की। लेकिन ये जो अता तारड़ जैसे टेस्ट ट्यूब बेबी हैं सियासी, इनसे और आप तो क्या करते हैं? तो एक नई जो ऑडियो टेप छोड़ी गई यहाँ पर लोगों के घरों की खवातीन को बदनाम करने के लिए, टेप का हमने कुछ नहीं किया, हमने जवाब नहीं दिया। आधे घंटे के अंदर सोशल मीडिया ने वो टेप उधेड़ के इनके हाथ में पकड़ा दी। आयशा अहद को छोड़ा था आपने, आयशा अहद की जवान बेटी को छोड़ा था आपने उनको थाने में जूते मरवाए थे। वो खुद कहती हैं, आप पीछे बैठ के जो कुछ कर रहे हैं स्ट्रेटेजिक सेल पे और जिन के कहने पे कर रहे हैं हमारे इल्म में है। कल उन्होंने अपनी तकरीर में भी ये कहा कि पाकिस्तान को एक ताकतवर फौज की जरूरत है। ये आज जुबान से बूट पॉलिश करने की कोशिश कर रहे थे। नून के सूबाई वज़रा बोग़-ए इमरान में अखलाकियात भूल गए। अता तारड़ और मलिक अहमद खान ने इमरान खान पर बेसरोपा इल्ज़ामात की बौछार कर दी। अता तारड़ ने कहा, इमरान खान जो कुछ कर रहे हैं उन्हें भुगतना पड़ेगा। गिरफ्तार करना हो तो मनशियात के इस्तेमाल पर गिरफ्तार कर सकते हैं। दावा किया, इमरान खान शिकस्त नजर आने पर हुकूमत और रियासत मुखालिफ तकरीरें कर रहे हैं। इलेक्शन में एक बंदूक, एक क्लाशनकोफ नजर नहीं आने दूंगा। मलिक अहमद खान भी इदारों को इमरान खान के खिलाफ भड़काते नजर आए। बोले, जलसों में कहा न्यूट्रल ना रहना, किसी को कहें सिराजुद्दौला, किसी को मीर जाफर या मीर सादिक कहा गया। जो आप कहते लेके आए, किस पे इल्जाम लगाते हैं? आपको बाजवा साहब ने कहा था करप्शन करें, आपकी जब करप्शन सामने आती है तो आप फौज पे हमले शुरू कर देते हैं। जिस दिन आपका कुछ स्कैंडल आता है आप कहते हैं फौज बहुत बुरी है, बाजवा साहब बहुत बुरी है। और क्यों गालियां देते हैं? क्योंकि बुशरा बीबी ने, फराह गोगी ने और एहसन जमील गुज्जर ने इमरान खान की ईमा पे करप्शन की है। और सर्टिफाइड चोर कौन है? जिसने डायमंड बेचे, जिसने घड़ियां बेची, जिसने अफसरान लगाए तो रिश्वत लेके लगाए। ये बुशरा साहिबा और फराह गोगी और एहसन जमील का जो ट्रायका था, इसके
सरबराह इमरान खान साहब हैं, ये पैसा उन तक जाता रहा है। हम नहीं जानते आप किस कमाश के आदमी हैं। ये वाहिद आदमी है जो कहता है कि मैं हूँ अमर बिल मारूफ और बाकी जो है वो सारे वो नहीं और मुनकर के उसकी कैटेगरी में खड़े होंगे, और जो इस बुराई को नहीं रोकेगा वो न्यूट्रल रह के बुराई का हिस्सा बनेगा। आपकी तो टोटल जो आपने ये बुनियाद बनाई, इस पे किया क्या कि आपने बैरूनी साजिश का नाम देकर असल में एक अंदरूनी साजिश की, और आपने भीख मांगी अस्करी अदारों से कि आपकी मदद की जाए। ऑन रिकॉर्ड है ये बात। आपने जलसों में जाकर कहा कि न्यूट्रल ना रहना, न्यूट्रल रहना गुनाह अजीम है, न्यूट्रल तो जानवर होता है। और फिर ये जो मीर तोशा दौला खुद लोगों को कभी किसी को कहें कि ये सिराजुल दौला है, किसी को कहें कि ये काफिर है, और खुद अपना किरदार क्या है कि अगर किसी और रियासत की तरफ से कोई तोहफा मिले तो उसको बेच के आपके घर के किचन चले। इनको मेरे नजदीक तोशा खान से बेहतर नाम और कोई दिया नहीं जा सकता। पार्लियामेंट को इज्जत एहतराम नहीं दिया गया। पिछला वजीर आजम पार्लियामेंट नहीं आता था, मौजूदा वजीर आजम भी नहीं आता। फैसले आइन नहीं मुशावरत के तहत हो रहे हैं। आइन की अपनी अपनी तशरीह की जा रही है। खुर्शीद शाह मौजूदा मुल्की सूरत हाल पर फट पड़े, कहा सियासतदान आवाम के लिए टाइम निकालें, इदारे और सियासतदान मिलकर सोचें। वजह क्या है? क्या पार्लियामेंट को हमने इज्जत एहतराम नहीं दी? अगली हुकूमत को देख लो, प्राइम मिनिस्टर पार्लियामेंट को नहीं आता था। हमारा ये भाई प्राइम मिनिस्टर साहब जो है, मेरे प्राइम मिनिस्टर लीडर ऑफ हाउस है, वो भी पार्लियामेंट में नहीं आते। जब आप अपने अदारों का एहतराम नहीं करेंगे, पार्लियामेंट में नहीं आते। 75 साल हो गए आज़ादी को। आज़ाद होने के बजाय हम गुलाम होते गए, गुलामी की तोक हमारे गले में डालते गए, मकरूज होते गए। 65 की वार हुई, 70 की वार हुई, हम मकरूज नहीं थे। आज हमारे पास एक आइन है, हम उस आइन का भी हशर मलिक साहब वो कर रहे हैं जैसे हमने पाकिस्तान की मैशत का किया। आजकल फैसले आइन के तहत नहीं हो रहे, आजकल फैसले मशावरत के तहत। हमारे पास आइन है, खुदा के वास्ते इस आइन को बचाओ, पाकिस्तान बच जाएगा। टॉक शो में देख रहा था कि एक मौजूदा वजीर वो कह रहा था कि हमारे गले में ये एक ख़तरनाक तोप पड़ गया है बेगैरती का, जो हम IMF से कर्जे ले रहे हैं। भाई क्यों पड़ा? किसने आपको धक्का दिया? 10 साल मुसलसल अगर ये सिस्टम चलता रहे, कोई भी हुकूमत में हो, एग्रीकल्चर को आप सपोर्ट करते रहो, अगर 10 साल के बाद आप अपने पाँव पे खड़े न हो, जो चोर की सजा वो मेरी सजा। अवाम के लिए आम इस्तेमाल की चीज़ें मज़ीद महंगी होंगी, राना सनाउल्लाह ने बता दिया। कहा IMF मुआहदे के मुताबिक सब्सिडी सिफर करनी है, इसी वजह से पेट्रोल भी महंगा करना पड़ा। राना सनाउल्लाह ने कहा कि IMF के मुआहदे के बगैर वर्ल्ड बैंक पैसे नहीं देगा। वज़ीर दाखिला ने कहा कि आर्मी चीफ की तैनाती मुकर्ररा वक्त पर आइन और कानून के मुताबिक होगी। इत्तेहादियों की हुकूमत आने के बाद शुरू होने वाली लोड शेडिंग का मलबा PTI हुकूमत पर डाल दिया रहा है, जो कि इंशाअल्लाह ताला अब नहीं होगा, और अगर वो किसी न किसी सतह पे मौजूद है तो उसको ख़त्म किया जाएगा इंशाअल्लाह ताला। इसकी जो बुनियादी वजह है वो तेल की, पेट्रोल की जो है वो कीमतें। लेकिन मजबूरी ये थी कि IMF के साथ जो मुआहदा था, उस मुआहदे के ऊपर बाकायदा जो पिछली हुकूमत है, जो इमरान खान न्याजी की क़यादत में थी, उन्होंने एक मुआहदा किया हुआ था, और IMF जो है वो वज़िद है कि जी जो मुआहदा हुकूमत ने किया है, हुकूमत तो पाकिस्तान की है, उन्हें तो इस बात से गर्ज कोई नहीं। उन्होंने कहा कि जी हमारे साथ मुआहदा है कि आपने सब्सिडी जो है वो ज़ीरो करनी है, और 30 रुपये पर लीटर जो है वो आपने लीवी जो है वो नाफिज करनी है, वरना इसके बगैर हम अपना जो मुआहदा है उसको बहाल नहीं करेंगे, हम आगे नहीं चलेंगे। और पूरे इकोनॉमिस्ट जितने भी लोग हमारे साथ थे, या हमारे साथ नहीं भी तो कारोबारी लोग थे जो इन चीज़ों को समझते हैं, उनसे मशवरा किया गया। तो अगर IMF आपका मुआहदा बहाल नहीं करता तो ना वर्ल्ड बैंक, ना कोई आपका दोस्त मुल्क, ना कोई और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन कोई आपको धेला देने को जो है वो तैयार है। वज़ीर लोड शेयरिंग खुर्रम दस्तगीर ने कहा है कि ईद की छुट्टियों में भी बिजली की लोड शेयरिंग होगी। तवानाई, पेट्रोलियम और ख़जाना की वजारत आपस में राब्ते में है। तमाम सरकारी इमारतों को दर्जा बदर्जा शमसी तवानाई पर मुंतकिल कर रहे हैं। गुजरांवाला में खुर्रम दस्तगीर की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा सोलर पैनल पर एक जामे स्पीच तैयार हो रही है। शहबाज शरीफ आइंदा चंद दिनों में सोलर प्रोजेक्ट का खुद ऐलान करेंगे। शहबाज हुकूमत आज छुट्टी के रोज़ भी काम में मसरूफ़ है।
होगी। लोड शेडिंग एक फॉर्मूले के तहत होती है, जहाँ के शहरी, जहाँ के हमारे काश्तकार अपना बिल पूरा देते हैं, उनको ईद पर बहुत बड़ा रिलीफ महसूस होगा। कुछ लोग बिल देते हैं, ज़्यादा तादाद नहीं दे रही, उनकी लोड शेडिंग होगी। हम तमाम चैलेंजेस में बड़ी कोऑर्डिनेशन के साथ, वजारत तवानाई का बहुत गहरा ताल्लुक है वजारत पेट्रोलियम और वजारत खजाना के साथ, ये तीनों वजारतें जो हैं ये मुस्तकिल राब्ते में हैं। पहले तमाम जो सरकारी इमारतें हैं उन्हें दर्जा बदर्जा शमसी तवानाई पर शिफ्ट किया जाए। जितने भी प्रोजेक्ट्स पिछले 4 साल में आए हैं सिस्टम में, उनके ऊपर मोहम्मद नवाज शरीफ की मोहर लगी हुई है। और आज़ादी सहाफ़त पर एक और कारी ज़रब। बोल न्यूज़ के एंकर पर्सन जमील फारूकी को नामालूम नंबर से धमकियां। कहा, हुकूमत पर तनकीद से बाज आ जाओ, इमरान खान तुम्हारा मामा लगता है क्या? बोल न्यूज़ और जमील फारूकी अपने मौक़िफ़ पर कायम, कहते हैं हम हक और सच की आवाज़ बुलंद करते रहेंगे, ओछे हथकंडों से कुछ हासिल नहीं होगा। तहरीक इंसाफ की बोल न्यूज़ के सीनियर एंकर पर्सन को धमकियों की शदीद मजम्मत। साबिक स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर ने ट्वीट किया, जमील फारूकी को नामालूम अफराद की तरफ से धमकी आमेज फ़ोन कॉल्स मौसूल होना और उन्हें हिरासा करना इंतहाई अफसोसनाक और काबिल मजम्मत है। सहाफ़ियों को हिरासा करने के वाक़यात रोज़ बरोज़ बढ़ते जा रहे हैं, जिसका नतीजा सहाफ़ियों का हुकूमत पर अदम एतमाद की सूरत में देखना पड़ सकता है। फयाजुल हसन ने बोल न्यूज़ से गुफ्तगू में कहा, तारीख में पहली गुलामान अमरीका की हुकूमत है जहां सबसे ज़्यादा सेंसरशिप है। सहाफ़ियों को दबाव में दिलाने के लिए जुल्म, जबर और गुंडागर्दी के हथकंडे इस्तेमाल किए जा रहे हैं। हक की आवाज़ को दबा नहीं सकते, आवाज़ मज़ीद उठती है। तारीख में मेरे ख्याल ये पहली इम्पोर्टेड हुकूमत है या यमन गुलामान अमरीका की हुकूमत है कि जिसमें सबसे ज़्यादा इस वक्त सेंसरशिप भी है और सहाफ़ियों के ऊपर जुल्म, जबर और इस्तेहसाल, गुंडागर्दी, बदमाशी और उनको दबाव में लाने के लिए हर जायज़ नाजायज़ तरीके पहली दफ़ा इस हुकूमत के अंदर इस्तेमाल किए जा रहे हैं। अब ये जो जमील फारूकी साहब के हवाले से भी जो हुआ है, मैं समझता हूँ इंतहाई काबिल मसम्मत है। किस्म के तरीक़ेकार से ना तो आप किसी हक की आवाज़ को दबा सकते हैं, ना किसी सच की आवाज़ को जनाब आप सप्रेस कर सकते हैं, और इस वाक़े की तहकीकात का मुतालबा करेंगे और जो लोग इसमें इन्वॉल्व हैं उन्हें करार वाक़ई सज़ा मिलनी चाहिए। खबरों का सिलसिला जारी है, यहाँ वक्त है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे कितनी छुट्टियां मिलेंगी, मार्केट गर्म, पाबंदियां नर्म, और आज़मीन हज के लिए अच्छी खबर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।